At the India AI Impact Summit in Delhi, a controversy erupted around Galgosia's University over the display of a robotic dog, raising questions about foreign technology being presented as Indian innovation. The robot, nicknamed Orion, was initially showcased at the university's exhibition stall as a product of its Center of Excellence. However, social media quickly identified the robot as the Unitree Go-2, a commercially available quadruped robot manufactured by China-based Unitree Robotics. Priced between to 3 lakh rupees in India, the robot is widely accessible and not an indigenous creation. The revelation sparked a wave of criticism, with many accusing the university of misrepresenting imported technology as its own innovation. In response to the backlash, summit organizers reportedly asked Galgosia's University to vacate its exhibition space at Bharat Mandapam, citing rules that prohibit presenting foreign products as Indian-made. Officials said such representations could undermine initiatives like Make in India and the spirit of promoting homegrown innovation. Galgosia's University quickly issued a clarification, stating that Orion was purchased from Unitree and was being used purely as a teaching and learning tool for students to understand robotics and artificial intelligence. The university stressed that it never claimed to have built the robot, emphasizing that it was intended as a classroom in motion rather than an innovation. Despite this clarification, the controversy lingered, with some social media observers pointing out that earlier representations at the summit had suggested the robot was developed in-house. Galgosia's University Professor Neha Sena added that no formal communication had been sent to the university asking them to leave the event, and she expressed concern about students being caught in the crossfire of the misunderstanding. This incident serves as a cautionary tale for educational and technological institutions, highlighting the importance of clear communication, transparency, and proper attribution when showcasing innovations. While tools like Orion can significantly enhance learning, the line between demonstration and representation must be carefully maintained to avoid confusion and controversy. In the end, what started as an educational display turned into a national debate on intellectual honesty, innovation claims, and the need for accurate storytelling in India's rapidly growing tech ecosystem. चाइना का प्रोडक्ट अपना बता करके डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पर क्या कहना है आपका? ये कहा गया है सर, पर ये हमारी तरफ से नहीं कहा गया है। ठीक है, हमने चाइना के या किसी भी कंट्री के किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अपना नहीं बताया। हमने बस ये बताया कि हम हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या काम करते हैं, हम हमारा एआई इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं, हमारे पास क्या सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, हम क्या प्रोक्योर करते हैं, हम बच्चों को किस तरह की टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कैसी विसिनिटी में उनको लगते हैं, क्या एक्सपोजर देते हैं। वही कल कहा गया, शायद ठीक तरह से कहा नहीं गया, शायद ठीक तरह से समझा नहीं गया, जो आज मैं ठीक तरह से वापस उसको समझाना चाहती हूँ। आई अपोलोजाइज अगेन इफ इट हैज नॉट कम अक्रॉस इन द वे इट शुड हैव कम अक्रॉस, एंड आई ऑल्सो हम्बली रिक्वेस्ट एवरीवन टू ऑल्सो फोकस ऑन व्हाट द यूनिवर्सिटी हैज बीन डूइंग फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन जो मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया, हमने बात की जब उनको, उन्होंने कहा कि एक तो इनको गलगोटिया को हमने कहा है कि स्पेस खाली करने के लिए, क्योंकि इनकी वजह से देश का नाम खराब हुआ है। ये मिनिस्ट्री गलगोटिया की वजह से देश का नाम बहुत रोशन हुआ है सर, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। आप आइए हमारी यूनिवर्सिटी, हमने देश को पैरालंपियंस दिए हैं, हमारे शुभांकर मिश्रा इज ए गलगोटिया एलुमनाई। ठीक है, गलगोटिया ने देश को बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज दिए हैं, जगह जगह पर वो अपना योगदान दे रहे हैं, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। इट इज अ लेगेसी सर। आप ऐसे यूनिवर्सिटी को जो टार्निश, उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें, क्योंकि एक छोटी इररिस्पॉन्सिबल हरकत से बहुत इंटरनेट हैज बीन टेकन टू स्टॉर्म बाय ऑल द रॉन्ग रीजंस। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहां चला गया, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आया था, वहां चला गया। हमारा सेंटर, हमारा कैंपस वो बच्चों के लैब में चला गया, जो जिस काम के लिए आया था। वो यहाँ 2 दिन प्रोजेक्शन के लिए था, प्रोजेक्शन हो गया। और एक और रीजन है उसका कि आप बच्चों के काम पे भी फोकस करें। सर, मैं फिर कह चुकी हूँ, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडियाज रिसोर्स एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल।
हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऐसी चीजें कभी होंगी भी नहीं, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी यूनिवर्सिटी पे, हमारे विजन, हमारे मिशन, हमारी अप्रोचेस में। पूरी कंट्रोवर्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर, कंट्रोवर्सी के लिए किसी एक इंसान को आप कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? किसी का कहा हुआ ठीक तरह से समझा नहीं गया, किसी का वापस समझाया हुआ को ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया, सब एक पे एक उसको बढ़ाते गए, इट हैज बिकम अ ग्रेप वाइन। इसके लिए कोई एक इंसान कभी जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। I only take the responsibility of not being able to articulate things enough which I intended to. But not that I claimed something on behalf of my university or my country. I am a very responsible professional and a very responsible citizen. मैंने कुछ गलत इसमें हम सारे आंसर्स आपको देंगे। हम सुबह से बता रहे हैं अपना पक्ष, पॉइंट ऑफ व्यू अपने बच्चे। टीचर भी सुबह से परेशान हो गए हैं। इंटरव्यू आपको मिल जाएगा ऑफिशियल। सर, we will be giving you official press release. ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज हो रहा है, थोड़ा देर वेट करिए आप लोग। चलिए मैम, चलिए आप। ये विजुअल बनेगा ये।